Born to Shine is India's first scholarship event for girl child prodigies in the field of art and culture. It is a flagship CSR program where we work towards providing encouragement and growth opportunities to the girl child prodigies. We want to make sure that the talent of these girls does not go unnoticed. These prodigies have the capability of representing our culture on global stage if they are rightly identified, nurtured and honed with proper guidance. So, Born to Shine brings to you the Knowledge Series, where we will be talking to experts from various fields of Indian art and culture. These experts will be sharing their exceptional knowledge of Indian art and sharing their guidance with our child prodigies. With this series, we are sure to answer a lot of your queries about who is a prodigy, how to identify a prodigy, and most importantly, how to nurture a prodigy into shaping them to be the stars that they are. Welcome everyone to Born to Shine Knowledge Series. Myself Priya Prasher, I am 14 years old and I am in class 9th. I study in Sacred Heart Senior Secondary School. Today I am very excited to take interview of Dr. Balaji Bhange. Today on Knowledge Series, we are going to fall short of words while talking about his knowledge and talent, an abundance of knowledge and experience in the fields of teaching, drawing, cartooning, illustrations, photography and film. He has a PhD in fine arts. He has used his talent to represent India on international level and received Excellence Award in KFOAS International Art Competition. Not just that, but he also won Picasso Award 2021 in International Art Competition and Exhibition and made the whole country proud. Today he will share with us his remarkable journey of winning numerous medals and awards in various competitions and platforms. So please welcome Dr. Balaji Bhange. Today I am going to introduce you Dr. Balaji Bhange. And he is a professional fine artist. He has many of his achievements. He has won many gold medals too in his art field and he is a professional artist. Sir, I welcome you to Born to Shine Knowledge Series. Hello sir, good morning. Yeah. Good morning. How are yes. you? I am good. So sir, I will start by asking you about your journey in this field. Okay, see, वैसे देखा जाए तो मेरा जर्नी बचपन से ही हुआ है, मतलब कि हम जैसे छोटे रहते हैं ना तो हमारे अंदर ललित कला होती ही है सब में, लाइक डांस, ड्रामा, एक्टिंग, एवरीथिंग. बस हमें उसको डेवलप करना होता है या फिर कंटिन्यू करना होता है आगे, तभी वो डेवलप होते हैं. Yes. तो मैंने जो मेरी आर्ट फील्ड की जो है ड्राइंग्स और इसको मोटिवेशंस मिलता था, लोगों की तारीफ़ मिलती थी, तो जस्ट मैंने उसको कंटिन्यू किया. तो धीरे 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 आगे भी उसमें वे मिलते गए और मैं आगे बढ़ता गया. सो दिस वाज माय जर्नी. So what is the art form you basically do? मोस्टली आई डू रियलिस्टिक पेंटिंग. मुझे लगता है कि मेरी आर्ट फॉर्म है ना सारे लोगों को समझे, ना कि सिर्फ क्लासिकल लोगों को एब्स्ट्रैक्ट है तो वाओ वेरी नाइस बट व्हाट इज़ दैट किसी को पता नहीं. ये ज़रूरी नहीं है, सबको समझना चाहिए, जनरल लोगों तक भी समझना चाहिए, ताकि हम छोटी सी छोटी अवेयरनेस या फिर कोई भी मैसेज हो या फिर हम आर्ट थ्रू कुछ करना चाहते हो वो सब तक पहुँचे. ये मेरा सोच है, इसलिए मैं मोस्टली रियलिस्टिक बेस या फिर ड्राइंग बेस ही काम करता हूँ. और उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, काफ़ी कुछ चलते रहता है. Okay. So if we want to make a drawing from our own imagination, so how you begin that? How you think? फर्स्ट यू हैव टू लर्न फ्रॉम लाइव. अगर आपको इमेजिनेशन करना है तो उसके पहले आपको लाइव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि मॉडल बैठा है सामने तो उसका फेस कैसा है, बॉडी कैसी है, इसका स्ट्रक्चर आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप मेमोरी से कर सकते हो. अगर आपको लाइव इंसान कैसा होता है या फिर एलियन कैसा होता है पता ही नहीं तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते. Yes, yes. तो लाइव जो स्टडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
और उसी में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है, लाइक ग्रेजुएशन BFA पेंटिंग में हुआ है तो उसमें सब कुछ लाइव था। उसमें मास्टर्स मेरा पोर्ट्रेट में हुआ है तो उसमें भी रियलिस्टिक था। तो रियलिस्टिक ड्राइंग, रियलिस्टिक स्टडी मोर इम्पोर्टेंट देन इमेजिनरी। Okay, so what type of techniques do you basically use for it? टेक्निक्स तो हम प्रैक्टिस करके मिलते हैं, बट अगर हम एजुकेशन फील्ड में जाए कि हमें आर्ट का एजुकेशन लेना है तो वहाँ पे टेक्निक्स मिलते हैं, बट जो भी टेक्निक है वो शॉर्टकट्स है। अगर हमें आर्ट में करियर करना है, कुछ करना है, तो उसमें डिटेल जितना स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके सिवा कोई शॉर्टकट नहीं, कोई टेक्निक्स काम नहीं करती, कोई ऑप्शन नहीं। So how do you feel about your achievements in this? आई थिंक नाउ डेज तो ऐसा है कि इट्स लाइक अ रूटीन, Yeah, अभी कुछ लगता नहीं है। it's normal. यस, बस शुरू में जब कुछ अवार्ड्स मिलते थे तभी लगता था, अच्छा लगता था कि मोटिवेशन मिलता था कि और कुछ करे, बट आफ्टर आई अचीव PhD अभी कुछ नहीं लगता ज़्यादा। Okay. So if we talk about Indian art culture, so if to bring it forward, so what would you do? सी एक्चुअली इंडियन कल्चर हर आर्ट फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. कुछ लोग वेस्टर्न फॉलो करते हैं ताकि उनको जल्दी से फेम मिल जाए, या फिर ऐसा ट्रेंड अलग है, या फिर डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, हर किसी का सोच अलग है। तो जिनको जो अट्रैक्ट करता है उस हिसाब से वेस्टर्न कल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। Okay. बट इंडियन कल्चर इज़ द रूट ऑफ आवर लाइफ, Yeah, it is. एंड आर्ट इज़ रिफ्लेक्टेड अबाउट लाइफ ओनली। सो अगर हम हमारे लाइफ रिप्रेजेंट करना है तो हमें इंडियन आर्ट कल्चर को आगे लेना ही है। मैं मोस्टली मेरा कल्चर के रिलेटेड ही होता है सारे पेंटिंग्स, और अराउंड 40-50 सीरीज़ मैंने काम किए डिफरेंट। Okay. उसमें से एक 10-15 सीरीज़ तो इंडियन कल्चर पे ही है, कि जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है, Yeah. या फिर जो हमारा वेद है, या फिर आयुर्वेदा, समथिंग लॉट ऑफ थिंग्स जो ट्रेडिशनल आर्ट्स है, लाइक वारली, मिनिएचर एंड ऑल, ये इंडियन कल्चर है। उसको हमें मॉडर्न में कैसे रिफ्लेक्ट करना है, कैसे लाना है, Yes. ये सब चीज़ों का स्टडी करके ही हम आगे जा सकते हैं। दैट इज़ द रूट्स। Yeah. सो रूट्स इज़ हाउ इम्पोर्टेंट यू कैन Yeah, अंडरस्टैंड। yeah. Yes. So can you tell about some of the competitions of your achievements where you participate? सी देर इज़ अ लॉट, बट आई थिंक थोड़े से मैं बोलता हूँ। मुझे एक 5-6 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, और नेशनल में तो जस्ट 20-25 गोल्ड मेडल्स एंड ऑल, ये कुछ है जो सबका रिकग्नाइज करना या फिर नाम बोलना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। Yeah. बट ठीक है, इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट, एंड अचीवमेंट जो होता है ना, ये खुद के लिए होता है, या फिर लोग हमें क्या जानते हैं, या फिर हम किससे कनेक्ट कैसे होते हैं, या फिर अपना काम लोगों तक पहुँचे, ये सब Yes. चीज़ें करने के लिए होता है। बट शुरू में वो जो छोटे अवार्ड्स है उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है, तब मोटिवेशन मिलता है कि हम और कुछ करें। Yes. सो शुरू में बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो तो फिर अपने टारगेट भी आगे बढ़ानी चाहिए Yes. ताकि अपनी प्रोग्रेस हो सके। Okay. सो इट्स लाइक दैट। So how was your art from beginning till the now? How it was? सी different? अगर ऐसे देखा जाए तो मैं 5th क्लास से ही प्रोफेशनल काम करता हूँ। Okay. Wow. लाइक घर की भी कंडीशन अलग थी। आई मीन प्रेशराइज नहीं था कि आप यही करियर करो या फिर कुछ अलग करो एंड व्हाटएवर, बट मेरा ड्राइंग अच्छा था तो मुझे काम मिलते गए। मतलब वो टाइम में जब मैं छोटा था तभी तो फ्लेक्स एंड डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो नेम प्लेट्स बनाना या फिर गाड़ियों के नंबर प्लेट्स बनाना, साइन बोर्ड पेंटिंग एंड ऑल, ये काफ़ी सारी चीज़ें बहुत किए जाती थे वो टाइम में। तो अम्ब्रेलास पे नाम लिखना, ऐसी चीज़ें शुरू हुई। फिर गणपति आते थे तो गणपति का डेकोरेशन करने जाते थे हम। सो ऐसे कुछ करते 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 बड़े लोग मिलते गए, कुछ लोगों ने ऑफ़र दिया कि आप हमारे साथ काम करो। ऐसे करते करते 12th तक चला गया। 12th के बाद मुझे किसी ने बताया कि इसमें एजुकेशन भी होता है, आप उसके लिए ट्राई करो। Okay. तो तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा तो ये है, तो एजुकेशन में बेस्ट कॉलेज कौन सा है। Okay. तो तभी मुझे पता चला जे स्कूल ऑफ आर्ट एक Okay. इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत अच्छा आर्ट होता है, बट वहाँ पे नंबर लगना बहुत मुश्किल है एंड ऑल। तो मुझे जे के बारे में कुछ पता था नहीं, तो फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए गए और देखा, एग्ज़ाम दे दिया और टचवुड भगवान की दया से नंबर भी लग गया। Okay. बट अभी रहने का सवाल था कि वहाँ जाके रहे कहाँ, क्योंकि हॉस्टल तो 3-4 महीने बाद मिलता है। Okay. तो कॉलेज शुरू हो जाता है, उसके 3 महीने बाद हॉस्टल मिलेगा, तो 3 महीने रहेंगे कहाँ। तो ये सारे सवाल आए, उस पर सोल्यूशन मिलते गए, काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी काम किए, बट
एक बार कॉलेज ज्वाइन किया, फिर धीरे 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 आर्ट का करियर एंड सारी चीज़ें फिर सारे चेंज हो गए। शुरू में जो मैं साइन बोर्डिंग और नेम प्लेट्स ये काम करता था, उसके बाद कॉलेज में सेकंड ईयर से मैंने आर्ट डायरेक्शन, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, ये सब चीज़ों में काम किया, फिल्मों में काम किया, एडिटिंग में काम किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम किया। तो अभी तो प्रोफेशनल पेंटर आर्टिस्ट करके काम करता हूँ। एग्जीबिशंस होते हैं, पेंटिंग सेल होते हैं, ऑक्शन होता है। तो वक्त के साथ, काम के साथ सब कुछ बदलता गया। Okay. So how does your art, whenever you make any of the art, when you see to it, how does it looks to you? जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो तब तक मैं काम करते रहता हूँ। Okay. शुरू में अगर मैं कुछ सिंपल बेसिक डिज़ाइन करता हूँ कि ये मेरा करना है, ये कंसेप्ट है, तो शुरू हो जाता है, बट वो लास्ट तक सेम वैसे रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बिकॉज जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट आते जाते हैं, उसमें आइडियाज ऐड होते जाते हैं, ऐसे आर्ट बनता है ना। आई एम लुकिंग आर्ट लाइक दैट ओनली। सी स्टार्ट में जो है पता नहीं वही सेम रह सकता है या फिर उससे अच्छा भी हो सकता है। सो क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट। Like if you make any of the drawing and it looks good to others but it not suits to your eyes, so how you do? यूजुअली आई डोंट डू, बट समटाइम्स अगर कोई कमीशन वर्क होता है, किसी के लिए मैं कर रहा हूँ पे करके, तो उनके चॉइस से करना पड़ता है। दैट इज़ अ कमर्शियल वर्क। एंड समटाइम्स यू नो, मतलब इनकम के लिए या फिर ऐसे चीज़ों के लिए, क्योंकि सिर्फ आर्ट बनाना, खुश होना, इससे पेट नहीं भरता ना। कभी कभी काम भी करना पड़ता है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं। सो बीच में मैं एज ए काफ़ी जगह पे जॉब भी किया है, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत वेल नोन पेपर है, तो वहाँ पे मैं एज अ कार्टूनिस्ट इलस्ट्रेटर था। तो वहाँ पे एज़ पर आर्टिकल एंड एज़ पर हमारे एडिटर के चॉइस, इन सब के हिसाब से, उनके कंसेप्ट के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। तो वी कैन। So whenever I make any of my drawing and if I see that no, it's not too good, but if I will show to my mother or my father, they will say it's too good, so why it's so? सी आप अपनी ड्राइंग किसी से कंपेयर करते हो, मतलब जो आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हो या फिर जिस रेफरेंस को आपने लिया है, इसलिए आपको लगता है कि ये सो गुड नहीं है। और आपके मदर फादर को इसलिए लगता है ताकि वो आपको मोटिवेट करे। और दूसरी एक बात होती है, अपने बच्चे का ड्राइंग अच्छा ही लगता है माँ बाप। सो बोथ, दोनों साइड से लेना है, उनसे मोटिवेशन लेना है, और हमें जो अच्छा नहीं लगता है उससे हमें प्रोग्रेस के लिए फिर से ट्राई करना है। सो दोनों ही चीज़ें अच्छी है। Like I have interest in shading drawing, but sometimes if I do, I feel very tired, exhausted. I think that now I should stop it. It's very difficult drawing which I have choose. So how to improve that thing that I should not give up? दैट तो आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है कि आपको कितना आता है, आप क्या कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस शुरू में आ गया, वो ड्राइंग कितना भी मुश्किल हो आप कर लोगे। बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बट चलो ट्राई करती हूँ, ऐसा सोच के अगर आपने ट्राई किया ना तो नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड, यस मुझे ये करना है, कर सकती हूँ या नहीं सकती हूँ, दैट इज नॉट अ इशू। मुझे करना है, सो आई हैव टू ट्राई। सो उस हिसाब से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होता है और कोई आसान नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन में अगर जाओगे तो उसमें काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं, लाइक बेसिक शेप्स एंड ऑल। बेसिक शेप के साथ अगर जाओगे तो हर ड्राइंग आसान है। दुनिया में जितने भी फॉर्म हैं सारे बेसिक शेप से बनते हैं। ये टेक्निक है, बट इसको सीखने के लिए टाइम लगेगा। If you ever go for a visit outside and you see the view, does it gives adding to your drawing? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आर्टिस्ट का होता है कि अगर कुछ सीन अच्छा है तो हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं, जो कि फ़ोटो में नहीं कर सकते, राइट। और जब अगर मेरे पास मटेरियल होता है, मैं पेंटिंग करने बैठता हूँ, तो ऑफ कोर्स आर्टिस्ट का कुछ तो होता है जो हम कर सकते हैं। हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ्लो भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। वो एक व्यू होता है जो आर्टिस्ट का व्यू होता है, तो वी कैन चेंज। So have you ever made any of the view by sitting at that place and looking at that place and you're making? Have you ever? लॉट ऑफ टाइम, आई मीन अराउंड मैंने 15-20 हज़ार पेंटिंग तो लाइव पेंटिंग किए रहेंगे। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो डेली रूटीन था मेरा कि मॉर्निंग में एक और कॉलेज छूटने के बाद एक लाइव पेंटिंग। ये कॉलेज टाइम में था। उसके बाद बाहर भी जब भी जाते थे हम, आउटडोर स्केचिंग एंड ऑल, वो तो स्टडी का पार्ट है, तो वो करना ही पड़ता है। उसके सिवा या इट्स इजी, बट आपको प्रैक्टिस शुरू के जो 8-10 वर्क करने में दिक्कत आएगी, उसके बाद तो अच्छा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
Okay. कोई So मुश्किल नहीं. if we are at the beginning of a drawing, like many of the drawings I make, and I see that no, this one is difficult, this one is easy, but which difficult one I make, that is good. But sometimes you're not satisfied from your work. हाँ, द सेटिस्फैक्शन इज कम इनसाइड. Yeah. आपने कितनी मेहनत की है, उसका रिजल्ट क्या है, Yeah. उस पर डिपेंड है कि सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है नहीं मिलता है. अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? आपका काम अच्छा नहीं है इसके लिए, या फिर आपने सच में उतना टाइम नहीं दिया है इसके लिए. तो डिपेंड ऑन योर थिंकिंग एंड प्रैक्टिस एंड योर वर्क. सो यू हैव टू मैनेज योर सेटिस्फैक्शन. How costly it is to pursue education and career in fine arts? सी शुरू में जब 11-12 में क्या होता था कि होने के बाद 12th के बाद क्या करोगे, ये एक तो डॉक्टर MBBS या फिर इंजीनियरिंग या फिर चलो D.Ed B.Ed. हमारे टाइम में तो क्रेज़ था, चलो बहुत होशियार नहीं है बंदा, टीचर बन जाओ, D.Ed करो B.Ed करो, टीचर बन जाओ. तो एक्चुअली मैं ये बात बहुत अच्छी सोचूंगा कि मुझे घर से कोई फोर्स नहीं था. मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब चलो 10th तक या फिर 12th तक. वो टाइम में 10th 12th भी बहुत अच्छा था, बट उन्होंने किसी चीज़ का फोर्स नहीं किया कि मुझे ये करना है वो करना है. बट मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उनके काफ़ी ऐसा था कि यस हमें ये करना है, हमें उसी फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ. तो मैंने एक दिन पापा से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे ने क्या बनना चाहिए. तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके ऊपर मेरा पूरा लाइफ ये हो गया, ऐसा समझो. वो जवाब मैं कभी नहीं भूल सकता. कि अभी पापा तो नहीं रहे, मगर उनका जो सेंटेंस है वो लाइफ टाइम रहेगा. लाइक उन्होंने बोला था कि आप जो भी बनो लाइफ में, अच्छे इंसान बनो, जो भी करो, काम कोई भी हो अच्छा करो. आर्टिस्ट बनना है, अच्छा आर्टिस्ट बनो, जो काम करना है. आर्मी में जाने का भी मुझे काफ़ी क्रेज़ था. मैं इवन आर्मी का एक ट्रेनिंग करके भी आया हूँ. तो वहाँ पे भी मुझे उन्होंने बताया कि आपका आर्ट बहुत अच्छा है, तो आपका आर्ट एजुकेशन लो, फिर आर्मी में ट्राई करो, उसमें काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं. तो फिर मैं रिटर्न आ गया उससे. तो 11-12 में था वो NCC एंड आर्मी का ज्वाइनिंग. फिर बाद में आर्ट का इतना मिलने के बाद फिर मैंने आर्ट कॉलेज फाइंड आउट करना शुरू किया. फिर काफ़ी अच्छे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिली. JJ में तो खैर नंबर लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं था, बिकॉज इतनी हिस्ट्री है कि अभी तो 180 या फिर 175 ईयर्स कंप्लीट हुए JJ के. और वर्ल्ड के जो टॉप 5 कॉलेजेस है उसमें JJ स्कूल ऑफ आर्ट का नाम आता है. तो उस कॉलेज में मेरा नंबर लगना ये हम सोच ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि इतने रिच फैमिली से भी नहीं थे. फीस कितना होगा, बॉम्बे में क्या है, कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं थे. और आर्ट फील्ड में लोग जब मैं जाऊंगा ऐसा मुझे लगा कि चलो घर से तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोगों का ये था कि क्या करेगा आर्ट फील्ड में जाके, मतलब आर्टिस्ट ही बनेगा. और वो टाइम में ऐसा कंसेप्ट था आर्टिस्ट यानी कपड़े गंदे चुन्ना लगाने वाला. सो वो ब्रेक करने के लिए ना कुछ अलग चीज़ थी. तो था इंटरेस्ट और कुछ खुद पे एक यकीन था कि चलो कुछ कर लेंगे, ये सोच के गए. बट आज दिख रहा है कि सब लोगों की आंखें ऐसे है. जो मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स है जो आउट ऑफ इंडिया में भी एज ए डॉक्टर है, MD वगैरह है, बट वो बोलते कि हम नहीं कर पाए, वो आपने कर दिया. सो दैट इज़ द अचीवमेंट आई थिंक. बट वो जो इस फील्ड में आते हैं लोगों की सोच चेंज करने में बहुत दिक्कत आई. एंड यस होता है कि बहुत कुछ चेंज करना पड़ा लोगों का माइंडसेट. बट वो टाइम पे मैंने ये सोचा नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, ये इम्पोर्टेंट था. और इससे मुझे घर पे बहुत सपोर्ट मिला. दैट्स व्हाट मैं ये कर पाया. सी खर्चा वाइज अगर देखा जाए, अगर आपकी करने की ज़िद है और आपको करना ही है तो आप एनी कास्ट कुछ भी कर सकते हो. मुझे पता है कि मैं फर्स्ट ईयर में जब बॉम्बे आया था तो शुरू के 1 महीना मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी. 8 दिन मैं रेलवे स्टेशन पे था, VT स्टेशन पे मैं फुटपाथ पे रहा हूँ. सोता नहीं था, कभी सोता था, व्हाटएवर जो भी है. उसके बाद गणपति के डेकोरेशन पंडाल का वगैरह काम शुरू हुआ तो मैं पंडाल में रहने लगा. घर तभी भी नहीं था. फिर वो काम ख़त्म होने के बाद कॉलेज कैंटीन में वेटर के साथ कैंटीन में सोता था कुछ टाइम. फिर उसमें से एक बड़ा वेटर था जो शिफ्ट हो गए कहीं और, खुद का वड़ा पाव का गाड़ी उसने शुरू किया. तो उसके साथ रहने लगा क्योंकि हॉस्टल नहीं था 3 महीने तक. तो कुछ टाइम वड़ा पाव भी बेचा उसके साथ. कॉलेज ख़त्म होके जाके वड़ा पाव का गाड़ी संभालता था, उसके बाद दिन भर कॉलेज करता था. ये सब हुआ क्योंकि इसमें ना एक जिद थी कि छोड़ के नहीं जाना है, चाहे जो मर्जी है, पैसे नहीं है ना मिल जाए, यस काम करना है. उसके बाद भी इनकम नहीं था.
कॉलेज तो जॉइन था, कॉलेज में पेपर लगते थे, कलर मटेरियल लगता था। अभी तो खैर मटेरियल की कॉस्ट अलग होगी, मगर मेरे टाइम में एक पोस्टर कलर की बॉटल 15 ml की 15 to 20 रुपीज़ में मिलती थी, बट उतने भी पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग चोर बाज़ार जाते थे, जो एक बोतल 1 रुपये में मिलती थी, जो पूरे कचरे का ढेर में से ढूंढ के निकालना पड़ता था कि हमें शेड कौन सा चाहिए। तो ऐसे करके मैंने 2 साल निकाले, बट 2 भी साल में कॉलेज में टॉप में था, फर्स्ट नंबर आता था दोनों टाइम पे। तो मटेरियल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू वर्क, आपका काम कितना अच्छा है और आप कैसे काम कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यस। और स्केचिंग, मैं रहता था स्टेशन पे, तो मुझे स्केचिंग करने के लिए इतना माहौल मिलता था कि मॉडल ही मॉडल है, जितना मर्जी कर लो। और वहाँ पे डर था कि बैठने नहीं देते अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो पुलिस वालों के डर से अगर हम स्केचिंग करते बैठे तो कोई नहीं कुछ बोलेगा, ऐसे ही बैठे तो टिकट मांगेंगे। तो रात भर में स्केचिंग करता था, प्रैक्टिस वैसे भी हो गई, रहने का जुगाड़ भी हो गया। सो ऐसे करते करते हो गया। बट ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि मटेरियल इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप मुझे कोयला दे दो, पत्थर दे दो, मैं कुछ भी बना ही दूँगा। सो आपको स्टेडलर पेंसिल चाहिए तो वो 150 रुपये की पेंसिल आती है, बट वही रिज़ल्ट आप 3 रुपये की पेंसिल में भी दे सकते हो अगर आपके हाथ में स्किल है तो। सो इम्पोर्टेंट इज स्किल, नॉट मनी। So how do you guide kids to indulge in this Indian art forms? जहाँ पे भी मैं सिखाने जाता हूँ तो वहाँ पे लोगों को ये होता है कि यस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड ऑल ये सब, बट वो जो है ना वो टेक्निक्स है, सिर्फ हमें स्केल तो डेवलप करना है। बट एक्चुअली इंडियन कल्चर जो है हमारा, वो जो है ना बेस है, हर आर्ट का बेस है। जैसे कि अगर आप 2nd 3rd स्टैंडर्ड में हो और आपको डायरेक्ट बोल दिया कि चलो पोयम बनाना शुरू करो, नहीं बना पाओगे। अगर बनाओगे तो भी टूटी फूटी रहेगी या फिर अरेंजमेंट रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा शुरू से, जो अल्फ़ाबेट्स है ABCD या फिर आई जो भी है, वो बेसिक है, उसके सिवा हम पोयम बना ही नहीं सकते। सेम आर्ट का ऐसे ही है, जिसका मैं देखता हूँ कि इसको अल्फ़ाबेट्स कितने आते हैं आर्ट्स के, उस हिसाब से मैं बेसिक शुरू करता हूँ। जैसे आर्ट के अल्फ़ाबेट्स है ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इनसे हम ड्राइंग तक कैसे पहुँचे। और ये इतना बेस है ना, आपको अगर बेस आ गया तो आपका ड्राइंग कभी नहीं गलत हो सकता। सो द ऑल जो इंडियन आर्ट्स है, लाइक उसमें वारली है और मधुबनी है, केरला मिनीचर है या फिर मिनीचर, मुगल मिनीचर, ये जो सारी चीज़ें ना ये बेस है। इसका नॉलेज बच्चों को होना ही चाहिए। ये आगे चल के कोई प्रमोट नहीं करता या फिर एब्स्ट्रैक्ट और ऐसी चीज़ें सामने आती है। इसका ये है कि क्या होता है, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम अपनी मेंटेलिटी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम एग्जीबिशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारा स्पेंड होता है, खर्चा होता है, अराउंड 5-6 लाख 10 लाख भी लग जाते हैं कुछ लोगों के हिसाब से। तो कुछ तो सेल होके हमें मिलना चाहिए, ऐसा होता है। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो सेल होके उतना नहीं मिलता, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी ये तो पुराना वाला ही चीज़ कर रहा है, नया क्या कर रहा है। सो न्यू क्रिएशन के लिए हमें उसका रेफरेंस लेना है, उसका स्टडी करना है, बट नया करने के लिए हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। लाइक वो ऐसा है ना कि 2 दिन में स्टार बन गया ना तो 2 महीने में डाउन भी हो जाएगा। बट अगर स्टडी करके 2 साल में अगर बनोगे तो 10 साल नहीं मिटोगे, आप रहोगे। सो जितना डीप स्टडी रहेगा उतना करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक। और हमने हिस्ट्री सीखी है, उसमें सारी चीज़ें सीखी है, तो स्टडी कर रहे हैं अभी तक। अभी तो मतलब लीगली जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD करना है तो उसमें भी 5-6 साल लग जाते हैं। तो अभी तक स्टडी कर रहे हैं सब होने के बाद भी, क्योंकि नई चीज़ सीखते रहते हैं। हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे हम लोग फिल्म भी करते हैं, कोई कैरेक्टर करना है तो उसका भी स्टडी करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ बेसिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबको करना ही चाहिए, जो नहीं करता है उसके लिए ये शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट इज़ नॉट, लाइफ तक नहीं जाएगा वो। हाँ, like everyone likes to draw, but some are there who don't do that, who are not able to do that. So how you will show them? मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइंग ये चीज़ सबको आती ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना कुछ कोड्स है, लाइक मैंने खुद बनाए जो बच्चों को सिखाने के लिए या मोटिवेशन करने के लिए। जिसको लिखना आता है उसको ड्राइंग आता ही है, बिकॉज A मीन्स अ ट्रायंगल, B मीन्स हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल, राइट, O मीन्स राउंड, मीन्स ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर तो सबको आता ही है। सो ड्राइंग आता है, दैट इज़ द बेसिक शेप। आई मीन आई कैन प्रूव दैट कि कैसे उससे करता है। या फिर सिंपल चीज़ों से भी आपको अल्फ़ाबेट्स 1 2 3 नंबर्स भी आते तो भी आप ड्राइंग कर सकते हो।
बिकॉज द होल्डिंग का तरीका जो है वो सेम ही होगा। वो आपके पास अगर पेपर रहेगा तो मैं आप करके दिखाता हूँ कितना Okay, इजी है ड्राइंग sure. करना। वेरी गुड। सी फर्स्ट बेसिक शेप इज ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग, इसमें इसके सिवा कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और अभी दूसरी बात, अभी ए और ये क्या है, ये तो स्क्वायर कर ही सकता है कोई भी, ये ओ, तो ये लिखना तो इजी है, ये सेम है। अभी आपको 1 2 3 4 ये भी अगर आता हो तो ये देखो, अगर मैंने बोला कि आपको 6 बनाया तो यहाँ पे 8, उसके बाद यहाँ पे एक ओ बना दिया, व्हाट, कार्टून। सेम अगर इसी को अगर हम ये कर दें यहाँ पे 6 8 और इजी है ना, ये तो कोई भी बना सकता है, मतलब हर कोई अगर इससे इंटरेस्ट शुरू हुआ तो आगे वो बहुत कुछ कर सकता है। फिर डिपेंड उसके शर्ट बनाओ, फिर जो मर्जी करो उसके साथ, ये बेसिक से ही जाएगा क्योंकि ये सब क्या है, लाइंस है, शेप्स है, सेम, इट्स लाइक दैट। अगर इतना भी आ गए तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा और धीरे 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 वो प्रोग्रेस करेगा। और हर चीज़ का बेस यही चीज़ है, क्यों, यस। अगर आपको फेस भी बनाना है, अगर पोर्ट्रेट बनाना है तो उसका जो भी है, ये नोज आएगा, ठीक है। आँखों का बेसिक ड्राइंग है ट्रायंगल, जो सबसे ज़्यादा हम बच्चे ड्रॉ करते हैं, है ट्रायंगल। आई, जितना हम डिटेल करेंगे उतना कर सकते हैं। और सो आपके समझने के लिए कि ये क्या है, हर चीज़, पेड़ पौधे बनाना है सब बेसिक शेप से आता है। घर बनाना है, स्क्वायर, डिब्बे डिब्बे डिब्बे, स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ट्रायंगल, घर, दैट्स इट। यू नो कि ये क्या है और इसका क्या रिलेशन है, ये समझ गए तो सारा ड्राइंग ईजी है। ओके, गॉट इट? Yes. Thank Thank you. you so much, sir. You're welcome. Your drawing is really very impressive, and I got to know new idea, that is 3 shapes, and I will also use it in my drawing, and I hope that I can also make like this. Good. How does art helps in normal life? आर्ट का तो इतना बड़ा रोल है कि हम उतना कॉन्शियसली सोचते ही नहीं उस चीज़ पे, क्योंकि बहुत से ऐसे जॉब है जहाँ पे हम प्रेशराइज होते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आर्ट इज़ लाइक अ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। जो हमें जो स्ट्रेस फील होता है ना, वो सब रिलैक्स होने के लिए आर्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने इतने बड़े बड़े जगह पे वर्कशॉप्स लिए हैं कि वो लोग जो 24 घंटा प्रेशर में रहते हैं, उनके फेस पे जो खुशी देखी है ना, तभी मैं समझ गया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ज़िंदगी में कुछ। बिकॉज मैंने डिफेंस की जगह पे भी काम किया है। वो लोग हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, काम के बारे में सोचते हैं, उनके अलग प्रेशर्स होते हैं, अलग टारगेट्स होते हैं। बट जो 10 मिनट जो सब कुछ भूल के इसमें इन्वॉल्व होना है ना, दैट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। और वो जो ना कहीं हमारे पूरे बॉडी पे, पूरे लाइफ पे ना रिलीफ फील करता है। एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ लाइक आर्ट थेरेपी, कलर थेरेपी भी है जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें हीलिंग में भी मदद करती है। सो आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मेरा PhD का भी सब्जेक्ट था कि हमारी बॉडी आर्ट से कनेक्ट होने के बाद हम क्या क्या फील कराते। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, और जो हमारे हीलिंग्स है, जो कि बीमारियों से लोगों को छुटकारा पाने में भी मैं आर्ट कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस चीज़ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। जिन डॉक्टरों की हेल्प ली थी मैंने, जिस हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किए थे, काम किए थे,
वो भी इतने खुश थे कि मुझे पता नहीं था कि आर्ट का इतना इम्पैक्ट होता है, तो मैं यही थेरेपी मेरे हॉस्पिटल में यूज़ करूँगा, ये भी मुझे रिजल्ट आया। सो आई फील गुड। तो आर्ट इतना इम्पोर्टेंट है, बट वो अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है, इसलिए हम जनरली ऊपर से नहीं देख पाते। सिंपल या अगर बात बताऊँ तो ऐसे बोला जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग पे इतने सारे रिसर्च हुए। अगर आप दुखी हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो आपको वो पेंटिंग दुखी दिखेगी। अगर आप खुश हो तो उसमें स्माइल दिखेगी। क्यों? पेंटिंग तो वही है, वो तो 2D है, फ्लैट सरफेस है, बट आप अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग उसको क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो इफेक्ट करता है। जैसे कि वैन गॉग की पेंटिंग, उसके हर पेंटिंग में जर्नी दिखता है, मूवमेंट दिखता है, पेन दिखता है, और लोग फील करते हैं। वहाँ एग्जीबिशन में काफ़ी लोग रोते भी है, बट आफ्टर दे क्राई फील रिलैक्स। तो वो ना कहीं तो मेंटली स्ट्रेस बस्ट करता है, तो वो तो है। So sir, I would like to tell you about my journey, as this art is for my passion, but more what I did in this year, I did it in lockdown. Lockdown gave everyone a lot of time and everyone has utilized it, because I know I did it and my creativity has been changed. नहीं, एक्चुअली दिस लॉकडाउन में तो बहुत लोग घर पे बैठे थे, तो कुछ करना है, कुछ हॉबी स्टार्ट करनी है। तो बहुत से आर्टिस्ट प्रैक्टिस किए और उसमें से बहुत अच्छे होके आगे भी आए हैं, दैट इज़ ट्रू। बट उसमें हुआ ये कि जैसे कि अभी आपके लॉकडाउन में आपने आर्ट शुरू किया है, बहुत अच्छा किया। हमारे लॉकडाउन में हम काफ़ी सारे काम छोड़ के घर बैठे थे और घर से ही काम कर रहे थे। वो टाइम में मेरे साथ जो फील हुआ वो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि आर्ट हमारे लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब कुछ चंडीगढ़ में भी है, कुछ बॉम्बे में है, कुछ कोल्हापुर, जलगांव, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे वर्कशॉप लेता हूँ। तो कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमें भी कुछ आर्ट का ये करा दो, ऑनलाइन ही सही। तो उसी लिए यूट्यूब चैनल ये सब शुरू किया था। बट बाद में कुछ लोगों का ये था कि सर हमें घर में बैठ के या फिर बाहर नहीं जाना, ये सब चीज़ों से ना डिप्रेशन आ रहा है, या फिर घर में चिड़चिड़ हो रही है, क्योंकि सारे लोग घर पे थे। तो या और एवरीबडी इज़ इन स्ट्रेस कि बाहर कोरोना है तो जाए नहीं जाए, घर में कुछ झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि सारे लोग घर के अंदर ही है। इतने लोगों को सवाल नहीं है कल क्या करे, जाए या नहीं जाए, सब लोग ऑनलाइन में हैं। तो कुछ लोग प्रॉब्लम बोलते थे कि सर आप काउंसलिंग भी करते हो, तो आप प्लीज़ अगर थोड़े हमारे मम्मी पापा को गाइड करें, या फिर हमें टेंशन आ रहा है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें गाइड करें। तो मैंने एक वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया कि एक पेंटिंग मैं बनाऊंगा, वो सबको भेजूंगा। ग्रुप ही बनाया था कि स्ट्रेस बस्टर, उसमें पेंटिंग डालूंगा, उसका वीडियो भी डालूंगा, वो देख के आप पेंटिंग बनाओ। कम से कम दिन में 1 घंटा ही सही, जो मुझे आधा घंटे का वीडियो है समझो, तो आपको 2 घंटे में लगेगा। तो उतना टाइम अगर इसमें स्पेंड करोगे ना, तो आपका माइंड उतना ही रिलैक्स हो जाएगा कि कुछ तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये मैंने कंटिन्यू 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने तक मैंने कुछ किया ऐसा। तो सारे बच्चों के रिज़ल्ट थे कि सर अच्छा लग रहा है आपको और कंटिन्यू करना चाहिए एंड ऑल ये सब। तो वो रिज़ल्ट बातों से या फिर उनके पेरेंट्स के बात करने से, ये सब चीज़ों से समझ रहा था। इवन बच्चों को भी ये फील हो रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज कोरोना में हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है। यस एग्जैक्टली। तो ऐसा करने से वेस्टिंग टाइम नहीं हो रहा है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है। कुछ लोग काफ़ी एजुकेशन भी कर रहे हैं अभी उस फील्ड में जो नहीं चाहते थे। सो डिपेंड। Who was your influence in this field? एक्चुअली इन्फ्लुएंस तो जब मैं शुरू में काम करता था तो मेरा कोई इन्फ्लुएंस था ही नहीं। जिन पेंटर के हाथ के नीचे मैं काम करता था, साइन बोर्ड पेंटर, मुझे उनके जैसा काम करना अच्छा लगता था, क्यों मुझसे काम उनका अच्छा था। बट जब मैं धीरे धीरे एजुकेशन फील्ड में गया तो मुझे हिस्ट्री एंड बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के नाम पता होने लगे। फिर मुझे एम एफ हुसैन भी अच्छे लगने लगे, फिर मुझे राजा रवि वर्मा भी अच्छे लगने लगे। तो वो टाइम में मुझे उनके जैसा काम करना अच्छा लगता था। फिर बाद में मुझे अभी रिसेंटली जॉन सिंगर सार्जेंट जो अमेरिकन पेंटर थे, उनका काम बहुत इंस्पायर करता है, जो कि रियलिस्टिक है। तो उनके जैसा काम करने की मैं कोशिश करता था, उनके जैसा काम काफ़ी किया भी है। तो अभी मुझे खुद में ही कुछ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग करना है। फ़िलहाल अभी तो एज सच इनके जैसा बनना ऐसा कुछ आइडल नहीं है, बट बहुत सारे आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने मुझे इंस्पायर किया और मैं उनसे काफ़ी सीखता ही रहा हूँ कुछ ना कुछ। How much bigger role does parents play in the child's career? एक्चुअली
पेरेंट्स के लिए बच्चों में ये चीज़ देखना इतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये सारी चीज़ें इनबिल्ड होती ही है। लाइक छोटा बच्चा जब कोई म्यूज़िक सुनता है तो डांस करता ही है, बिकॉज डांस है उसके अंदर, राइट। और वो चौक भी जब उसके हाथ में मिलता है तो दीवारें गंदे कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसके अंदर आर्ट है, ठीक है। कलर देखता है तो अट्रैक्ट होता है, जाता है। किसी की एक्टिंग करता है क्योंकि एक्टिंग भी है। मिट्टी के साथ खेलता है तो स्कल्पटिंग भी है। सो ये है, बट अगर करियर करना चाहे, उसमें जाना चाहे तो यस, उसकी कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें खुद को डेवलप करना चाहिए। बट दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो अच्छी चीज़ ये है कि आर्ट इतना कुछ दे सकती है आपको, जो आपको नॉर्मल चीज़ या फिर कितने भी पैसे नहीं दे सकता, जो आर्ट दे सकती है। जो ये एक चीज़ है सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। लाइक मैं एक स्कूल में था जहाँ पे एक बच्चा था जो थोड़ा सा माइंड से थोड़ा कम था, बट एक साल वो मेरे पास था। उसके पेरेंट्स भी थोड़े से मतलब गुस्से वाले थे, तो घर का भी सिचुएशन थोड़ा अलग था। तो जब पीटीएम मीटिंग होती है तो उसमें उनसे बात करने के लिए कोई भी टीचर यूजुअली डरता था कि यार इनसे क्या बात करना है, काइंड ऑफ। बट वो टीचर ने जिस दिन एक साल पूरा होने के बाद जो मुझे जो बताया, वो इतना वॉश था कि मतलब आई कैन शेयर विथ यू कि लाइक वो बच्चे में इतना चेंज आया था कि वो हर क्लास में कुछ ना कुछ तो करना, या फिर किसी की चोटी खींचना, चोटी काट देना, या फिर टीचर को कुछ फेंक के मारना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ऐसी चीज़ें थे जो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। ये आर्ट के थ्रू, मतलब आर्ट एंड काउंसलिंग ये भी हो सकता है। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, मतलब इस चीज़ की तो कोई मेडिसिन नहीं है ना दिमाग को ठीक करने वाली, वो आर्ट से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपको आर्ट में जाना है, आपके पास सब अच्छा है, बट करियर करना है तो स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि आर्ट फील्ड इजी नहीं है। आप सीख तो लोगे, एडमिशन मिल जाएगा, एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर एजुकेशन व्हाट, क्या करोगे? अगर पेंटिंग करके एग्जीबिशन करना है तो उसका प्रमोशन, सेलिंग एंड ऑल, ये सब इनकम कैसे होगा, जॉब कहाँ मिलेगा, शादी होगी या नहीं होगी, कैसे क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग सवाल पूछ पूछ के मार डालते हैं। बट अगर आप आपके जो है आपने डिसीजन लिया है उस पर अगर अटे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो टाइम थोड़ा लगेगा, बट यू विल अचीव वेरी बिग, जो कोई भी नहीं अचीव कर सकता। दोनों चीज़ है, अगर करना है तो इतना पक्का ठान लो कि बस एंड तक जाना है। हाँ, बस करना ही है, बाकी कुछ पता नहीं, तो आप कर लोगे। अगर आधे से थोड़ी स्ट्रगल, नहीं यार जॉब कर लेता हूँ, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। दोनों चीज़ें हैं, भूखा रहूँगा मगर यही करूँगा। जैसे कि वैन गॉग जो है, सिर्फ उसे वाइन और ब्रेड खाने को मिलता था, 8-8 दिन तक कुछ नहीं मिलता था खाने को, एक ब्रेड एंड एक वाइन, दैट्स इट। फिर भी आज जो उसने किया, आज जो उसका नाम है, सो ऐसी ज़िद होगी तो हम कुछ भी हासिल कर पाएंगे। यस, सी अगर आप ज़िद से अगर करने जाओ तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको, मतलब अभी अगर आप बहुत पैसे कमा लो तो कुछ पीढ़ियाँ तक चलेगी। अगर आर्ट के थ्रू अगर एक पेंटिंग बनाए, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, वो मर के कितने साल हो गए, मगर आज भी उनका नाम अमर है, और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट म्यूज़ियम में उनका एक पेंटिंग है, और एक पेंटिंग के लिए पूरा एक गैलरी दिया गया है। उस पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा है, जो हम सोच भी नहीं सकते। कीमत की छोड़ो, मगर वो आज भी पेंटिंग उतनी ही मेंटेन किया हुआ है, उनका नाम आज भी वैसे है, उस गैलरी को भी उनका ही नाम दिया गया है। सो मतलब आज भी लियोनार्डो दा विंची ज़िंदा है। सो ऐसा कुछ करना है तो हमें आर्ट फील्ड में ही आना चाहिए, और देयर इज़ नो ऑप्शन कि यस आप कितना भी पैसे कमा लो, कुछ सालों तक आपका नाम रहेगा, बट एक कुछ पेंटिंग ही कर लो, सालों तक आप अमर रह जाओगे। सी आज के ज़माने में हमें जो सोशल अवेयरनेस या फिर जो लोगों का रिस्पांस मिलता है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आर्ट में करियर करना है तो। बट हमें किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना है, ये भी हमें डिसाइड करना है। बट अगर इसमें करियर करना ही है तो फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, कि इनको आपको आपके बच्चे का टैलेंट जज करना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं कर पाओगे तो वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी आज के ज़माने में इतना कंपटीशन एंड ऑल इतना बढ़ गया है कि सारे बच्चों को ज़बरदस्ती सारी उंगलियां खींच खींच के सीधी करने में लगे हैं। बट जब सारे अलग अलग होंगे तभी तो एक मुट्ठी बनेगी ना। सो दिस काइंड ऑफ चीज़ है कि अगर वो आर्ट में जा रहा है तो उसको जाने दो आर्ट में, अगर स्पोर्ट्स में जा रहा है तो स्पोर्ट्स में जाने दो, पढ़ाई में जा रहा है तो पढ़ाई में जाने दो। तो यू हैव टू फाइंड द टैलेंट इन योर चाइल्ड, राइट।
एंड उसके हिसाब से आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं ये बच्चों पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता ही है। हमारे टाइम में तो ट्यूशन्स और ये सब चीज़ें थी नहीं, और आज तक मैंने कभी ट्यूशन या फिर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह किया नहीं, और बच्चों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो तो, और ये बहुत मैटर करता है। एंड पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर उनको कुछ अलग करना भी है, सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट तो मत करो। बच्चा अपने आप प्रोग्रेस कर लेगा और खुद आपको बाद में प्राउड होगा। सो इतना तो केयर करना चाहिए पेरेंट्स को, अदरवाइज़ ठीक है, सब हो जाएगा अपने आप। ये जो बॉर्न टू शाइन इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है और बच्चों को प्रोग्रेस करने में हेल्प भी होती है, क्योंकि काफ़ी स्कॉलरशिप एंड ऑल ये सब चीज़ें हमारे टाइम में थी नहीं। हमें तो स्टेट में भी अवार्ड मिलता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये कि हम अभी इंडिपेंडेंट होके हम अमृत महोत्सव का 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर अभी भी यहाँ के जो बच्ची गर्ल्स है उनको इतना फ्रीडम नहीं है जैसे कि राजस्थान, यूपी। तो उनको जो करने दिया जाना चाहिए वो अभी भी पूरी तरह से इंडिया में नहीं हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है इनके थ्रू जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत सही है, जो कि गर्ल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और जो ये देखेंगे वो भी इंस्पायर होकर कुछ करना चाहेंगे, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के गर्ल्स बहुत आगे जा चुके हैं, मगर और भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे एरिया में जो है उसकी ज़रूरत है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, और ये बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारे देश के फ्यूचर के लिए ही बहुत अच्छी बात है। So good, all the best. So whatever you have told about your journey, about each and everything has inspired me a lot, and I thank you so much for such a lovely concern about in this field. इतना सुनने के बाद आगे क्या करना चाह रहे हो? I will want to go in art field because it's big opportunity. It's not given to everyone, because if I'm getting the chance I should not lose it, because if I will lose it I will regret at the end that I get the chance at that time and didn't do that. So after talking to you I will surely pursue myself in this field, and thank you so much. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा हो, इसमें से काफ़ी जानकारी भी आपको मिली हो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इससे इंस्पायर भी हुए हो तो वेरी गुड, थैंक यू।